Yes, a very happy Diwali to all of you in advance. क्या प्लान है वैसे दिवाली के? चलिए आज तो पहले ये बात कर लें, फिर दिवाली के प्लान बाहर निकल के बनाते हैं. सो अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आप आए और मुंबई के ट्रैफिक में सुबह सुबह टाइम पे आना. मुझसे पहले अभिषेक यहाँ पहुंच चुके थे, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. और ये पहला लेसन है. मैंने अभिषेक से एंटर होते हुए यही बात कही कि अभिषेक यू आर ऑन टाइम बट यू आर रिस्पेक्टिंग द टाइम. और जो लोग ये करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट जिसने भी टाइम का रिस्पेक्ट किया, ऐसा लगता है बहुत छोटी सी बात है कि हाँ ठीक है 5 मिनट इधर या 5 मिनट उधर. दिस इज अ ग्रेट सेइंग बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट बीइंग ऑन टाइम इज नॉट ग्रेट, बीइंग बिफोर टाइम इज नॉट ग्रेट. लेट होना तो खराब ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बीइंग ऑन टाइम. जो पहले आ गया उसका भी उतना महत्व नहीं है, लेट आया उसका तो है ही नहीं, लेकिन जो टाइम पर आया उसका बड़ा महत्व है इस दुनिया में. सो अभिषेक ने आज जो हमें बताया, थैंक यू अभिषेक. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले वो जो टॉपिक मैंने पढ़ा था न्यू एज वाला, जस्ट मुझे ये बताइए कि अभी ये जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, ठीक है इन्होंने कोर्स किया, ये फाइनल ईयर स्टूडेंट है, निकल जाएंगे, दे हैव अ वेरी बिग डिग्री इन देयर हैंड विद प्रेस्टिजियस नेम एसपी जैन, बट व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? क्या उतना काफी होता है? So, एक second before I answer this question, you asked about happiness and money. So, Bank of America, I worked there for about 6 years. I was in sell-side analyst, and then I also did some investment banking, and they paid me a lot of money. So, I asked my wife at the end of the 5th year, do you want a rich and grumpy husband? Because I wasn't very happy with what I was doing. Or do you want a poor and happy husband? So, she said, obviously rich and grumpy. So, जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया था for that rich, you're in my wife's camp. I did leave the job because I wanted to start something of my own. थोड़ा मारवाड़ी पना भी था, and मोदी जी क्या रोज चिल्लाते रहते हैं. तब भाभी जी ने क्या कहा जब आपने ये जॉब छोड़ा? अरे वो 1 साल लगा उनको कन्विंस करने में कि जॉब छोड़ देना, जॉब छोड़ना चाहिए. बट क्या है, अभी मोदी जी रोज चिल्लाते हैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एंड यू नॉट गेटिंग यंगर एनीमोर, राइट? नॉट यंग एज यू गाइज आर. सो आई सेड चलो खुद का शुरू करते हैं कुछ. बट विल कम टू दैट अ लिटिल लेटर. कमिंग टू योर क्वेश्चन, everybody will come out of this room or this college with shining, charming CVs, right? Each one of you will be equally competitive, equally good. Now, what else can you offer if you come to me for a job? What will I want to see? Skills, I'm assuming you all have. Indians are smart. Just let's agree on that. Okay? We are all hardworking. Let's agree on that. You need to be able to speak well. Just believe me, you are a salesperson from the day you step out of this room. You have to be able to sell. I'm not saying you become a sales guy, ghadi becho, gaadi becho, but you'll have to sell yourself, right? So you're a salesperson, period. So you need to be able to speak. And please, you're in India. People come to me and they start speaking in English, and I say, boss, ab Hindustan mein ho, aap Hindi mein bolo na. You speak in English and you fumble. That's worse than speaking in Hindi. So speak in Hindi. Speak in the language you're comfortable. Speak in Marathi. The other person will understand. But speak in a language you're comfortable, because you'll be able to communicate and articulate it better. Don't try to speak in a language and this fake thing. हम भी जब US गए थे, तो within 6 months भी नहीं, 3 महीने में हमें एक एक्सीडेंट आ गया था. एकदम हाई फंडा. तो that we can do. We're very smart. I told you that. Second thing, I think what's going to be a big differentiator is you need to be likable. Again, I'm repeating. It's a complex word. You need to be likable. You need to be, मतलब जैसे सभी हैं यहाँ पे. As I said, you're all smart. Let's assume you all have soft skills. You have everything. The differentiator in the future will be how likable you are. Because if you're going to be grumpy and वो क्या बोले आप, हर चीज में नुक्स निकालना, हर चीज में खराब बोलना, versus the ones who are happy. Is going to be a big difference. Not only for yourself, but also for your clients, also for your team. Right? So just be approachable, likable, and the world will come back to you. No doubt. जो अभिषेक बता रहे हैं ये रियल लाइफ लर्निंग है. टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आई थिंक एक स्टडी भी है और ये बताती है द मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ वेरी वेल. जो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं. वो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, हिंदी है, इंग्लिश है, या जो भी आपकी लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता यहाँ, लेकिन आप हमारे लीडर्स को भी देखेंगे, इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, वो कनेक्ट बिठाते हैं, है ना. इट्स कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के, ऐसा नहीं है, या हिंदी बहुत अच्छी हो, ऐसा नहीं है. कनेक्ट आना चाहिए. क्या आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं जो आपके सामने है, दैट इज इंपॉर्टेंट.
एंड द अदर थिंग ही सेज इज जो आपने कहा यू आर लाइकेबल, लोगों को आपको पसंद करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों को खुश करें कि वो आपको पसंद, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अबाउट जब आप काम अच्छा करते हैं या आप अपने, देखिए एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल सा थॉट है कि मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं सोचूं कि आप मेरी बात को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा बोलूं वैसा बोलूं, वो तो मैं मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। आपका मूड कैसा है, आप क्या सोच के आए, आपके मन में क्या चल रहा है। आधे लोग यहाँ बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं, मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज है, मैं जितना अच्छा बोल सकता हूं या अभिषेक जितना अच्छा बोल सकते हैं, और ये हमेशा रहेगा लाइफ में। आप क्या कर सकते हैं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी आपका जीरो कंट्रोल है किसी और पे, आपका खुद पे 100% कंट्रोल नहीं है तो किसी और पे तो हो नहीं सकता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और कभी मत डरिए कि ये क्या सोचेगा या क्या लगेगा, वो कहने के लिए बड़ी छोटी बातें और आजकल तो रील्स वगैरह पे बहुत चलती है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अ ब्रेन इज ट्रेन लाइक दैट कि हम डर पे खड़े हुए हैं। साइकोलॉजी में आगे जब हम आज बात करेंगे वेलनेस की, वहां पे बात निकलेगी, बिकॉज डॉक्टर्स आर बीइंग विद अस, की जो ब्रेन है उसकी ट्रेनिंग सिंस सर्वाइवल वो डर पे खड़ा हुआ है। अगर हम डरेंगे नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ऐसे ही हम इवॉल्व हुए हैं। बट एक थॉटफुलनेस भी हमें मिली है, जिसको हम हिंदी में शायद विवेक कहते हैं, इंग्लिश में क्या होगा उसके लिए? विवेक इन इंग्लिश? हाँ, या नॉट डिस्क्रिमिनेशन, मे बी कॉन्शियस लिटिल क्लोजर टू दैट। तो जो हमें डिस्टिंग्विश करने की क्षमता मिली है ब्रेन में, जहां डर के ऊपर हमने अपने ब्रेन को डेवलप किया है, हम समझ सकते हैं कि सही है या गलत है। डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेल, बी लाइकेबल इन द सेंस अभिषेक ने आपको डिफाइन किया, और खुद कीजिए। बाकी जो हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप जो करेंगे वो बेस्ट होगा, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे ना। अभिषेक सेकंड, आपने जब बैंक ऑफ अमेरिका छोड़ा या Yes. फिर आपने इतनी मोटी तनख्वाह छोड़ी, तो क्या प्लान था? आपको लगा था कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपको लगा एक चांस लेता हूं क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है? हाउ इट कम टू योर माइंड एंड हाउ यू मेक इट इनटू अ सक्सेस और मे बी स्टार्ट? नहीं, okay. So it was slightly mitigated because in Jones Lang LaSalle, I headed research at JLL. I don't know how many people know JLL, by the way. Have you heard that name before? Jones Lang LaSalle, naam suna hai? It's one of the largest consulting companies in real estate, advisory. But तो वहां पे हम यही काम करते थे. We were advising developers, banks and investors, where should they buy land, what should they build, blah, blah, blah. But the data कुछ भी नहीं था. India had not reached a stage where it was transparently available, the data of real estate. Now, if I were to tell somebody, ki, once I know your full name, once I know Vipin's full name, I exactly know where he lives in Bombay. Would you agree? How would I know that? How many people think I can have this data? Hands up. Okay, few people said yes. Why do you think that? कैसे पता आपको ये data available होगा? That's private to him. How do I know where he stays? Or how do I know where he stays? I've not even met him. I don't even know him. But once I know his full name, I know where he stays. How? Tools. Oh, okay. Thank you. We only made those tools. But she's right. 5 years back, 10 years back, अगर मैं बोलता तो लोग बोलते कि I'm drunk. Right? But it's available today. It's available because जहाँ आप तो बहुत छोटे हो तो आप लोग के पास शायद घर नहीं होगा. At some point आ जाएगा. But whenever you buy a house or an office or a land or whatever, you have to pay stamp duty to your state government. That information is a public information and we can buy it officially, no chana seeing, no hanky-panky business. Okay, officially buy it from the state government and then it's in millions. Huh? अच्छा, घर कितने बॉम्बे में? People know? कितने घर है बॉम्बे में? किसी के पास जवाब है? Oh, you have an answer? Oh, you don't have an answer. You raised your hand, right? Okay, it's in millions. Impossible to get that kind of data, right? वैसे बोलते हैं ना कि data is a new oil. वो पुराना हो गया अभी. Data is a new garbage. I'm serious. Anyway, coming to your question, the reason it wasn't so difficult क्योंकि JLL में हम ये काम करते थे. Therefore, we found a massive lacuna in the market कि वो data available ही नहीं है. अब trick ये है कि वो data खरीदो and convert that to analytics. Because I can't dump million data on you. I have to convert into analytics in English and then send it back to you. Right? And therefore, we are able to cater to media. We love you. Banks. No, because अब आपको तो अमिताभ बच्चन, अमित जी छीकेंगे तो भी पता चलना है कि कहाँ छीके. We'll tell you कहाँ उन्होंने घर खरीदा, कहाँ ऑफिस बेचा. Banks, developers, brokers, investors,
They all love our data because they want to know, they eat, breathe, drink real estate on a daily basis. So yeah, so it was slightly mitigated, but हमेशा कभी पता नहीं होता कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. Right. But what he essentially did is he identified a problem कि यहाँ एक scope है, there's a big gap, क्या चीजें नहीं आ रही हैं, so identify data बहुत सारा आ रहा है. Data thing is almost like पिछले 10 साल में आया है. There is a lot of data collecting sources and Google है and all other things. उस डेटा का क्या करेंगे? और बिल्कुल सही इन्होंने कह दिया है कि गार्बेज हो गया है. टू मच ऑफ डेटा भी किसी काम का नहीं है जब तक वो एनालाइज ना हो. तो इन्होंने सोचा कि चलिए डेटा को एनालाइज करते हैं. तो इन्होंने एक प्रॉब्लम को देखा और उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की. अगेन जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना, अगेन द सेकंड थ्योरी इज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर इज अ सॉल्यूशन, और वही अभिषेक ने दिया है एंड ही मेक इनटू अ बिग सक्सेस. राइट. तो अभिषेक ये तो सोच लिया, लेकिन फ्रॉम अभी, अच्छा जस्ट अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू योर ओन बिजनेस, मे बी स्टार्टअप और समथिंग एल्स? I hope everybody. Okay, fair number of hands. And how many of you want to join any job or maybe startup or maybe any kind of job? Nice. There's a number of it. That's fine. तो देखिए उससे एक आइडिया लगता है. हालांकि यही सवाल जब हमने आरबी इंजीनियरिंग कॉलेज में पूछा था, आंसर्स आर डिफरेंट. And the same question when we ask in the Christ University, essentially a management college there in Bengaluru, the answer is entirely different. But in Mumbai, the answer is completely different. And I think this is a change of the mindset. गुजरात जाओगे तो शायद 100. हाँ, maybe. मुझे लग रहा था कि it's a change of like we are in the engineering college or maybe we are in a commerce college or maybe we are in a management college, but city-wise is also changed. It's a different here in SP Jain. So now, आपने सोच तो लिया, Yes. लेकिन दुनिया की अगली प्रॉब्लम ये है, आइडियाज तो शायद हम सब दे देंगे इस कमरे में जितने बैठे हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन शायद हार्डली एक या दो लोग कर पाते हैं. वो डिफरेंस क्या है, वो कैसे फुलफिल होगा? सोच तो मैंने बहुत अच्छा लिया, लेकिन हाँ मैं उसे कैसे रियलिटी में बदलूंगा? Yeah, guys, just मतलब you'll have to just believe me. इसको गांठ बांध लो. आइडियाज बहुत हैं. आप ऐसे चल के जाओगे, आप you're in the bus, you're in the aircraft, you'll have dozens of ideas because we are smart. But execution is key. Because you will stumble issues at taxation, कंपनी कहाँ चालू करनी है, 20 जन हो गए तो उसका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड चाहिए. You will have issues at all times. You'll have compliances at all times. Just make sure that you remain compliant at every step that you move forward. Try to remain bootstrapped. I know people get to this whole excitement, and if I can use the word, get seduced by raising capital. You know, फिर न्यूज में आते हैं, हेडलाइंस आता है कि इतना पैसा रेस कर लिया, फोटो वोटो आती है, पीपल फील नाइस. फिर देन दे वांट टू डू IPO. ग्रेट, डू इट, नो प्रॉब्लम, बट डू इट ओनली इफ यू नीड इट. डोंट डू इट टू बी इन द हेडलाइंस. राइट? मैं अपनी टीम को रोज बोलता हूं, अच्छा रोज ज्यादा हो गया, एवरी वीक बोलता हूं कि बॉस सैलरी के लिए तो सभी काम कर रहे हैं, बट बिकॉज वी हैव डिजिटाइज्ड रियल एस्टेट, मोदी जी रोज बोलते हैं ना डिजिटल इंडिया, वी हैव डिजिटाइज्ड रियल एस्टेट. We are working for getting a Padma Bhushan from him because we want to just imagine, you can put your finger on any residential office land or क्या होता है, mall, warehouse, and we can tell you who owns it, what is the size, who rented it, what is the rent, everything. That's digital India. That's what UPI. आप तो सब young हो ना, किसके पास wallet है अभी? How many people carry wallet over here or the lady's purse? Oh God, इतने सारे. My son tells me, if you're carrying a wallet, you're Buddha uncle, Dadaji. Because your phone is your wallet. You don't need it. Right? That's young India. We are running on data, we are running on digital, and अगर कहीं पे भी कुछ होगा वो हिंदुस्तान में ही होने वाला है. So, but 2-3 things again, to coming back to this question. Please focus on execution. Please hire the right people. अकेले आप सब कुछ नहीं कर पाओगे. Can you do taxation and sales and IT and development? No. The most difficult thing that when you are doing a job also, by the way, even the job seekers, and if you're hiring, if you're a CEO or a founder, the most difficult thing is to manage people, hire the right people. Just believe me. And your co-founder, तो is even more important than your spouse. I'm serious. मतलब spouse के कितने घंटे spend करोगे? 4-5 दिन के, वो founder का तो is 10 hours per day, maybe even 14, right? So please make sure
your human management skills are number one. That should be your number one go-to thing when you leave SP Jain. Tell me how to manage people. अगेन आई एम एग्री विद अभिषेक, क्योंकि ये बात बहुत सही है. मैं एक छोटा सा उदाहरण उसके लिए देता हूँ. शायद 3-4 महीने पहले आई एम ट्रैवलिंग इन अ लोकल ट्रेन, और वहां पर दो, द यंग लेडी एंड मे बी हर बॉयफ्रेंड, दो थे, और दोनों चार्टेड अकाउंटेंट थे, न्यूली पास्ड आउट. और वो बात कर रहे थे, मतलब कि ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें. और लड़की ने शायद लड़के से बोला कि एक बार ना थोड़ा सीनियर हो जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, फिर लाइफ इज सेट. क्योंकि जो हमारे बॉसेज है ना, मतलब वो क्या है, बता देते हैं ये करो ये करो ये करो ये करो, एंड दैट्स इजी. लड़के ने थोड़ा डिफर किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम होगी. मैं चाहता तो नहीं था उन दोनों के बीच में बोलना, लेकिन ऑब्वियसली कम आउट ऑफ मी कि नहीं, ये सही कह रहे हैं, द गाय इज राइट. बिकॉज टू डू योर ओन जॉब इज वेरी इजी. आपको कहा कि ये पर्टिकुलर एक्सेल शीट करके ले आओ, या ये काम करके ले आओ, जो भी आप जहां भी जो भी काम करेंगे, और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की एक ये पीपीटी बना दीजिए, ठीक है. लेकिन जिस दिन आपको कहा जाएगा कि ये 3 लोगों की टीम हम आपको दे रहे हैं, अब इनसे काम कराना है, आप सिर के बाल नोच लेंगे. राइट इट डाउन, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, इट्स इवन नॉट इजी टू कंट्रोल योरसेल्फ. तो बाहर के आदमी को आप कैसे कंट्रोल करोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड द वन हु नो दिस स्किल विल एक्सेल फॉर श्योर. तो अभी से अपने लीडरशिप क्वालिटीज पे ध्यान दीजिए, कैसे उनको डेवलप करना है. अच्छा, कई बार बोला जाता है कि नहीं, लीडर्स तो बॉर्न होते हैं, लेकिन इसीलिए तो एसपी जैन इंस्टीट्यूट है ना, जहां पर लीडर्स बनाए जाएंगे इस तरह के इंस्टीट्यूट में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू टेकल पीपल, छोटी छोटी टीम्स. जैसे जो बात अभिषेक कह रहे हैं ना, मैंने उनसे पूछा कि एग्जीक्यूट कैसे किया, तो अभिषेक एसेंशियली आंसर दे रहे हैं कि धीरे से उन्होंने एक टीम बिल्ड की. जब भी आप अपना कुछ स्टार्टअप करते हैं या कुछ भी करते हैं, टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन एक शॉपकीपर जिसके यहाँ 5 लोग अंदर दुकान में काम कर रहे हैं, भले ही वो साड़ी लपेटने का काम कर रहे हैं, अगर वो उनको नहीं संभाल पा रहा है तो उसकी दुकान नहीं चलेगी. उसकी दुकान इसलिए नहीं चल रही है कि उसके पास बहुत अच्छा स्टॉक है, उसकी दुकान इसलिए चल रही है क्योंकि उसके पास 5 एफिशिएंट सेल्समैन हैं, और वो उनको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है, उनको खुश रख पा रहा है, या वॉट एवर. तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड अ टीम एंड टू मैनेज द पीपल. ये स्किल अगर आपने सीखा, और चूंकि ये आपके मैनेजमेंट कोर्स से ही रिलेटेड है, तो आपको आगे जाके ये करना ही पड़ेगा. आप अकेले बहुत अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब सिर्फ आपके काम से काम नहीं चलेगा. यू टू मैनेज पीपल, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ कमिंग टू लिटिल बिट ऑन द कंक्लूडिंग साइड, ये सब कुछ हो गया. आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, और जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, हाउ यू स्ट्राइक अ बैलेंस. ऐसा तो नहीं हो गया, मैं अक्सर स्टार्टअप वालों को देखता हूँ 3 बजे उठ के, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है. नीचे के लोग भी परेशान रहते हैं कि हमारा बॉस 3, मतलब स्टार्टअप कल्चर में बड़ा कूल है कि सुबह 3 बजे आप अपने कलीग्स को फोन करो, पूछो कि रिपोर्ट बताओ. बट आई डोंट थिंक ये काम करने का कोई अच्छा तरीका. हाउ यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू व्हेन वन इज योर पर्सनल लाइफ, मे बी योर अदर लाइफ, एंड अदर इज दिस स्टार्टअप थिंग, प्रोफेशनल, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, नो डाउट. सो यू हैव टू हैव अ हॉबी. आप चाहे 18 साल के हो, या यू कुड बी 75, and if you're still working, you should have a hobby for yourself which allows your mind to unwind, because that's something that you are loving it. चाहे वो आप आधा घंटा करो दिन में, 1 घंटा करो, unless you fall in love with the work you're doing, which is in my case. So talking about real estate, talking about India, Indian real estate, global real estate, comparing India with, I don't know, Bombay with Milan, Milan with something else, New York is something I love. तो फिर तो मेरा I'm doing hobby only all day. तो मेरे को तो मजे ही मजे हैं. Right? If you reach that nirvana stage, God bless you, all the best. But till the time, you need to have a hobby. Now, I still have 2 hobbies outside real estate, right? One is Lata ji. She is my goddess. I can talk about Lata ji forever, so I won't discuss that. But second would be, I don't get enough time to do it now, because दिखता भी कम है, 40 plus हो गए हैं. तो, to make jigsaws. How many people know jigsaws? Have you made jigsaws? Yeah, very few. So, love making jigsaws, and I used to be so crazy कि I used to make 1,000-piece jigsaw in one day. But as I said, दिखता कम है, तो और अच्छा jigsaw में problem क्या है? It occupies too much real estate, big space. वो बॉम्बे में real estate is expensive, so can't do that. But you know, you can go to YouTube and have dozens of videos on this work-life balance. अच्छी बातें सुन लेना कोई. Don't waste time on it. Just find your own rhythm. Just make sure they're not working 18 hours, because even if you try working 18 hours, it is not sustainable. At some point, your body will collapse, or your mind will collapse.
So have this balance. If you love movies, go see movies. Yeah, we all love Bollywood. You like cricket, so go see cricket. We all love cricket. So, but just find your balance. But you have to work. And work for becoming, this might sound like Krishna and Arjun. Like the mythology. क्योंकि हाँ, sure. एक सवाल मेरे मन में आ गया. हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो कहते हैं 18 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो, तो I don't agree with that at all. या शुरू में शायद 6 महीना 1 साल हमने भी 18 घंटे काम किया होगा. Because you are setting up a product, you're trying to go and sell your brand, you're trying to reach out to as many people as you know in the past. किया होगा. और करना भी चाहिए, अच्छी बात है. आपका खुद का प्रोडक्ट है यार, आप नहीं करो तो और कौन करेगा, right? But it's not sustainable forever, right? Then you hire your team, let them do it, let them grow. अगर आप टीम को हायर करोगे and if they don't grow, why are you? They leave you, right? So it has to be a progressive. Like you have to keep moving up. If you don't move up, the people below you will not move up, and they will leave you. It's literally as simple as that. So it's your responsibility to make sure that your team is happy, they have enough growth opportunities, they're getting paid well, and believe me, paying well is less important at some point than being happy and coming and working in a toxic environment. डीप इनसाइट्स में भी ये बातचीत अच्छी चल रही है और बात करने का मन है. आई थिंक शायद सुनने का भी मन हो, लेकिन चूंकि घड़ी बता रही है कि अब हमें इसे विराम देना पड़ेगा. सो थैंक यू वेरी मच अभिषेक एंड रियली वेरी वेरी डीप इनसाइट्स. मतलब कई बार हम जब अभी रुके I just have one thing if you're ending before I leave. Ki guys, how many people know the GDP of India? जल्दी जल्दी बताओ यार, नहीं तो फिर टाइम खत्म कर देंगे. हाँ क्या है? 4 ट्रिलियन. जीडीपी ऑफ इंडिया कितना है? 4 ट्रिलियन. What's America? 30 trillion. What are they growing at? Less than 1%. What are we growing at? 8%. Right? अभी सिर्फ 3 ही कंट्री दुनिया में, अमेरिका, चाइना एंड इंडिया. एंड चाइना इज अ बैड बुली, बैड ब्रदर. कोई डेटा मिलता नहीं है तो छोड़ दो उसको. आई एम डेटा गाय. It's only America and India. We are growing at 8%. It's because of you guys. And you guys are the future of the next 20 years. So please make sure India will grow. Sectors will grow. It's your marzi whether you want to grow with it or not. So stay here. जाइए abroad, पढ़ के आ जाइए वापस मेरे जैसे. But India is rocking. And if you want jobs in real estate, we are all looking for people all the time. Okay, so big round of applause for Abhishek and all of you. Thank you very much, Abhishek, for this thing. Thank you. It's a really nice talk. My pleasure. And with that, let's welcome your